சாமானிய அசுராள் இல்லை. தேவலோகாதி சகல லோகங்களையும் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சுண்டு, அதாவது உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஹிரண்யகசிபு மாதிரி ரொம்ப பயங்கரம்னா பயங்கரம். அப்பேற்பட்ட அசுராள். அவளுடைய சக்தி ரொம்ப அபரிமிதமானது. அப்பேற்பட்ட அசுராளுக்கு சைன்யம் ரொம்ப அதிகம். அதுல அம்பாளோட சண்டை போடுறச்ச அம்பாளனுடைய சரீரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு சரீரத்திலிருந்தும் ஒவ்வொரு ரூபமானது வெளியில வருது. வைஷ்ணவி, கௌமாரி, வாராகி, பிராமி, நாரசிம்ஹி அப்படின்னு நரசிம்மருக்கு என்ன ரூபமோ அதே ரூபத்தில் இருக்கிற அம்பாளுக்கு நாரசிம்ஹின்னு பேரு. வராகர்னு இருக்காரோனோ, வராகர் ஸ்ரீ வராகருக்கு என்ன ரூபமோ அதே ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய அம்பாளுக்கு வாராகின்னு பேரு. சுப்பிரமணிய சுவாமி மாதிரி கையில வேலை வச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய அம்பாளுக்கு கௌமாரின்னு பேரு. இந்த மாதிரி எங்க பார்த்தாலும் ஒரே அம்பாளா இருக்கா. உலகம் முழுவதும் அம்பாளா வியாபிச்சு இருக்கா. அப்படி தன்னுடைய ரூபங்களை கொண்டு சண்டை போடுறா. யுத்தம் நடக்கிறது. இந்த சும்பாள் இருக்காளே, அவ ரொம்ப போக்கிரி. அவ என்ன பண்ணிவிட்டா, தங்களுடைய சைன்யங்களை துவம்சம் பண்றா அம்பாள். அப்படி பண்றச்ச எப்படிடா இதை அடக்கிறது, நம்ம எப்படி ஜெயிக்கிறது அப்படின்னு ரொம்ப புத்தியை உபயோகப்படுத்தி கசக்கறான். புத்தியை ரொம்ப கசக்குன்னு கசக்கறான். அப்ப ஒரு அசுரனை அனுப்பினான். அந்த அசுரன் யாருன்னா ரக்த பீஜன்னு பேர் அவனுக்கு. அவனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, மண்டை முழுவதும் மூளை அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா, உடம்பு முழுவதும் போக்கிரித்தனம் அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி அவனை அடிச்சா ஒருத்தர் அப்படின்னா அவன் கிட்டேந்து ரத்தம் கீழே சிந்தும். ஒவ்வொரு ரத்த துளியிலிருந்து 300 அசுரன் கிளம்பிடுவான். அந்த கிளம்புற புதுசா உற்பத்தி ஆயிடுவான். உற்பத்தி ஆற அசுரன் அந்த ரத்த பீஜனுக்கு எந்த அளவுக்கு சக்தி இருக்குமோ அதே சக்தி, அதே மாதிரி ஒரு அசுரன் உற்பத்தி ஆயிடுவான். இப்ப அந்த ரத்த பீஜன்கிறவனே இப்படியே ஆஜானுபாகுவா வியாபிச்சு நிக்கிறான். தியாவா பிருத்திவின்னு ஆகாரத்தையும் பூமித்தையும் வியாபிச்சு நிக்கிறான். அவனை அம்பாள் அடிக்கிறா. எல்லாரும் அடிக்கிறா. கௌமாரி, வாராகி எல்லாரும் போடுறா, அம்பு போடுறா, வேலை விடுறா. அடிக்க அடிக்க அவனுடைய ரத்தமானது எல்லா இடத்துலயும் தெளிக்கிறது. தெளிச்சா என்ன, ஒவ்வொரு ரத்த துளியிலிருந்து ஒவ்வொரு ரத்த பீஜன். அப்ப உலகம் முழுவதும் எங்க பார்த்தாலும் ஒரே ரத்த பீஜன் தான் இருக்கான். என்ன பண்றதுனே புரியல. அவ ஜெயிச்சிருவா போல் இருக்கு, எதிர்கட்சி ஜெயிச்சிரும் போல் இருக்கு. எல்லாம் இப்படி இப்படி ஏத்த இறக்கமா தான் இருந்துட்டே இருக்க. அப்ப இந்த பட்சி ஒரு மேல இப்படி ஏறுற மாதிரி இருந்தா திடீர்னு போக்கிரி பசங்க அவங்க மேல வந்துட்டான். ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி தோண ஆரம்பிச்சு விடுத்தோம். என்ன பண்றதுன்னு உடனே அம்பாள் பார்த்தா, நீ ரத்த பீஜனையா அனுப்புற அப்படின்னு சொல்லி அம்பாள் ஒரு சக்தியை சிருஷ்டி பண்ணா. சாமுண்டா அப்படின்னு, மகாகாளி அப்படின்னு மகாகாளியை சிருஷ்டி பண்ணா. என்ன பண்ணா, சிருஷ்டி பண்ணி நீ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, உன்னுடைய நாக்க நீட்டின்றணும். அவளுடைய நாக்கு பார்த்தேன்னா, காளிய கல்கட்டாலாம் போய் பார்த்தேன்னா மகாகாளி நாக்க நீட்டின்னு இருப்பா, தொங்க போட்டுன்னு இருப்பா. அந்த காளி நாக்க நீட்டினா உலகம் முழுவதும் அம்பாளுடைய நாக்கு. அந்த அவ்வளவு பெரிய நாக்கு. எல்லாரும் நாங்கெல்லாம் அடிப்போம் ரத்த பீஜனை. அவனுடைய ரத்தம் எங்கெல்லாம் விழறதோ அந்த இடத்துல இருந்து அசுரன் கிளம்புவான் இல்லையா, அவனை நீ சாப்பிட்டுடு. அந்த ரத்தம் என்ன சொன்னா, ரத்தம் கீழே விழாம பாத்துக்கோ. பூமியில விழுந்தாதான் அந்த அசுரன் கிளம்புவான், உற்பத்தி ஆவான். அந்த பூமியில விழாம உன்னுடைய நாக்குல வாங்கி அப்படியே குடிச்சிரும் அப்படின்னா, ரொம்ப கோர ரூபியாக மகாகாளி நாக்க தொங்க போட்டுன்னு இருக்கா. இந்த ரத்தமானது சிந்தறது. சிந்தினா அந்த நாக்களை நாக்கில இருந்தே ஒரு அசுரன் உற்பத்தி ஆயிடுறான். நாக்கு முழுக்க ஒரே அசுரன். என்ன பண்ணானா மகாகாளி, அப்படியே பிஸ்கட் சாப்பிட்ற மாதிரி இந்த சீட முறுக்கெல்லாம் கடிச்சு சாப்பிடுவாளே, நுறுக்கு கறக்க முறுக்குன்னு, அது மாதிரி அத்தனை ரத்த பீஜனையும் அப்படியே உள்ள போட்டு பல்லால கடிச்சு சாப்பிட்டாலாம். அப்படி அந்த சரித்திரம். அதுக்குதான் ரத்த பீஜ நிகந்திரியை நமஹா அப்படின்னு பேரு. 8ஆம் அத்தியாயம் இப்ப பாராயணமாயிருக்கு. அதுல அந்த ரத்த பீஜ சரித்திரம் தான் இப்ப பாராயணமாயி ஹோமம் பண்ணப்பட்டிருக்கு. மேல 9, 10 இந்த 2 சரித்திரங்கள்ல சும்ப வதம், அப்புறம் 11வது சரித்திரம் நாராயணி சரித்திரம். அம்பாள முன்னாடி மாதிரி நமஸ்கார அத்தியாயம் அது. அப்புறம் 12, 13 இப்படி ஆகி பூர்த்தி ஆகும். இப்ப சுவாசினி பூஜை, கன்யா பூஜை,
அங்கே அம்பாளுக்கு அர்ச்சனைகள் பூர்த்தி ஆயிருக்கு. இதே சமயத்தில் இங்கே சுவாசினி பூஜை கன்னியா பூஜைகள்லாம் நடக்கும். ஓம் சர்வஸ்வரூபே சர்வேஷே சர்வசக்தி சமன்விதே பயேபியஸ்திராஹி நோ தேவி துர்கே தேவி நமோஸ்துதே. கைதட்டு காதுல விடலையா? என்ன சொல்லணுமோ அது சொல்லு. மயூரகுக்குடவிருதே மகாசக்திதரே நகே கௌமாரீரூபசம்ஸ்தானே நாராயணே अष्टमाध्याय देवतागे महाकर्पूर नीराजनं दर्शयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि. ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानधे पदं समोढमस्य पागं सुरे भूर्भुवस्सुवः ओम राजो वाच स्वाहा. श्रीमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्या सरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं स्वाहा. भोगच्छेच्छाम्यहं श्रोतं रक्तबीजे निपातिते सकारुशुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चादिकोपनः स्वाहा. ईशिरुवाच स्वाहा. चकारकोपमृदलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भादुरशुम्भश्चहते शून्येषु हवे स्वाहा. हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामृषमुद्वहन् अभ्यधावन् शुम्भो च मुख्यया सुरसेनया स्वाहा. तस्याकृतस्तथा वृक्षे बाष्पयोश्च महासुराः संदच्चोष्ठपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः स्वाहा. आजगाम महावीर्यः शुम्भो विश्वलैर्वृतः विहन्तुं दण्डिकाकोपा कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः स्वाहा. ततो युद्धमदेवासे देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवरशमदेवोऽग्रं मेघयोरिववर्षितो स्वाहा. चिच्छेदास्तां चरांसाभ्यां दण्डिका सुशरोत्तरैः ताडयामारुताङ्गेषु शत्रुषैरतुरेश्वरौ स्वाहा. विशुम्भो निशितं खड्गं चर्मजाडाय सुप्रभम् अदाडयन्मोर्ध्वजिह्वं देव्या वाहनमुत्तमं स्वाहा. ताडिते वाहने देवेश्वरप्रेणाजमुत्तमम् विशुम्भस्यादु दिच्छेद धर्मजाप्यष्टचन्द्रकं स्वाहा. छिन्मे धर्मणि खड्गेन शक्तिं जिक्षेपसोदरः तामप्यस्यद्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां स्वाहा. कोपाध्मातो निशुम्भोत शूलं जग्राहदानवः आयान्तम् मुष्टिपातेन देवी रचाप्यचोर्णयत् स्वाहा. आविद्याथगदा सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति स्वामिदेव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता स्वाहा. तदपरिहस्तं नमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोधैरपादगतभूतले स्वाहा. तस्मिन् निपतिते भूमो निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातरिगदेव संक्रुद्ध प्रजयो हन्तुमम्बिकां स्वाहा. सरथस्तथाच्युच्चैर्गृहेण परमागृहेः भुजैरट्टाभिर्व्याप्याशेषम् अभोनभः स्वाहा. तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् झाशब्दं जापितुनश्चकारादेव दुस्सहं स्वाहा. पूरयामास कुभोजखण्डासेन च समत्तरेत्य सैन्यानां वेदोवधविधागिना स्वाहा. तरसिंहो महानादेत्यादेवमहामदेः पूरयामास गगनं गान्धदैवदिशोदश स्वाहा. तदकाले समुत्पद्य गगनं क्ष्मामदाडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिता स्वाहा. अट्टाट्टहासमशिवं शिवदोचेतकारः तैशब्दैर्गदेशुम्भकोपं परं जयु स्वाहा. दुरात्मं दक्षदिक्षेति व्याधहाराम्बिकायदा तदा जयेत्यभिहतं देवीराकाशदं स्थिरैः स्वाहा. शुम्भेनागत्य चक्कर्मुक्ता ज्वालादिभीजना आयान्देवन्निहोडाभागानि रस्तामहोल्कया स्वाहा. सिंहनादेन ब्रह्मव्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घादरित्वराघोरोजितवानमणिपटे स्वाहा. शुम्भमुक्ताञ्छलान् देवे शुम्भत्तप्रहिताञ्छलान् चिच्छेदसुरैरुग्रे शतशोषसहस्रश स्वाहा. ततः सा चण्डिका कर्धाचूलेनाभिदखानतं सुददाभिहतो भौमो मोर्चितो निमपादः स्वाहा. ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजगामशरैर्देवीं कालीं केसरिणं दधा स्वाहा. पुनश्च कृत्वा बाहो नाम युतं धनजेश्वरः चक्रायुधेन दिदिरक्षादगामास चण्डिकां स्वाहा. ततो भगवते क्रुद्धा दुर्गा दुर्गादिनाशिनी चिच्छेदेवे चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च स्वाहा. ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिका अभ्यधावत वैहन्तं दैत्यसैन्यसमावृत स्वाहा.
तस्यापदेवादो गदां चिच्छेददण्डिका खड्गेन शतधारेण शतशूलं समादधे स्वाहा शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमराधनं दिव्यव्याधशूलेन वेगाविध्येन चण्डिका स्वाहा भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यतिष्ठे पुरुषावदन् स्वाहा तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनमत्तदः शिरश्चित्तेन ततो सावपदद्भवि स्वाहा तदसिंहश्चकालोग्रदंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तां तथा कालेष्वदोरे तथा परान् स्वाहा कौमारेर्भिन्ना केजुन्नेषुर्महादराः ब्रह्माणे मन्त्रभूतेन दोजेनान्ये निराकृताः स्वाहा माहेश्वरे त्रिशूलेन भिन्ना पेषु तथा परे वाराहे तुण्डघातेन केजुच्चूर्णीकृता भुवि स्वाहा खण्डनं खण्डनं च चक्रेण वैष्णव्यादानवा कृताः वज्रेण चेन्द्रे हस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे स्वाहा केचिन्नसुरा केचिन्नष्टा महाहवादे भक्षिता चापरे काले शिवदोति मृगाधिपैः स्वाहा जगदम्बार्पणमस्तु नमो देव्यै महादेव अपानागे गृहेण परमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तुते नवमाध्याय देवतागे महासरस्वत्यै नमः कर्पूरनीराजनं दर्शयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम कृष्ण 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 ओम ऋषिरुवाच स्वाहा स्वाहा निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंविदं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वद स्वाहा बलाबले पदुष्टे त्वं मातुर्गे गर्भमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यते जातिमानिनी स्वाहा देव्युवाच स्वाहा एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापर पश्यैतादुष्टमय्येव शंस्योमद्विभूतय स्वाहा ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्यादेव्यास्नोदपुरेकैवासीताम्बिका स्वाहा देव्युवाच स्वाहा अहं विभूत्या बहुभिर्हरूपे विदास्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्यादोत्थिरो भव स्वाहा ऋषिरुवाच स्वाहा ततः प्रववर्ते युद्धम् ओम कृष्ण 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 ओम ऋषिरुवाच स्वाहा ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानां सुराणां च दारुणं स्वाहा शरवर्षेषु शस्त्रे तथा शास्त्रे सुदारुणेः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करं स्वाहा दिव्यान्यस्त्राणि शतसो मुमुदेयान्यथाम्बिका अभञ्जतानि दैत्येन्द्रः तत्प्रतिघातकर्तृभिः स्वाहा मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरे पभञ्जलेलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः स्वाहा ततः शरशतेर्देवे माच्छादकरसोदरः
सापि तत्पपिता देवे धनुच्छेददेषुभिः स्वाहा छिन्ने धनुर्जदैत्येन्द्र तथा रक्तिमथाददे चिच्छेददेवे चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां स्वाहा ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमते अभ्यधावरदां देवीं दैत्यानामधिपेश्वर स्वाहा तस्यापदजगेपादखड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैश्वदैर्बाणे चर्मचार्ककरामलं स्वाहा अश्वांशपादयामादरथं दार्थिनादः अटाश्वसरदादैत्यच्छिन्नधन्वारसारथि स्वाहा जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिकाधनोद्यतः चिच्छेदापददत्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः स्वाहा तथापि सोऽभ्यधावत्ता मुष्टिमुद्गम्य वेगवान् समुष्टिं पादयामाद हतये दैत्यपुङ्गव स्वाहा देव्यात्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य दाडयत् तलप्रहाराभिहता निपपादमहीतले स्वाहा सदैत्यराजसहदा पुनरेव तथोच्चितः उत्पत्त्य च प्रकृष्टोच्चैर्देवीं गगनमाच्छित स्वाहा तत्रापि सा नराधारा यूथे तेन चण्डिका स्वाहा निगद्धं खेददादैत्या चण्डिका च परस्परं चक्रतो प्रथमं सिद्धिर्मुनिविस्मयकारकं स्वाहा तदा निगद्धं सुचरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पाद्य भ्रामयामास दिक्षेपधरणीतले स्वाहा सक्षित्वाधरणीं प्राप्य मुख्यमुद्गम्य वेगवान् अभ्यधावतु दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया स्वाहा समायान्तं ततो देवे सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पादयामादभित्वा शूलेन पक्षति स्वाहा सकटासपपादोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः कालयन्त्रकलां पृथ्वीं दाभ्यदेवान्तपर्वतां स्वाहा तदा प्रसन्नमखिलं हरे तस्मिन्दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमदेवापनर्मलं दाभवन्नभः स्वाहा उत्पादमेधा श्लोकाय प्रागासंश्लेषमङ्गयोः सरितो मार्गवाहिन्या तथा संसर्गवादिते स्वाहा ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानदाः बभूवर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितां स्वाहा अवादयं तथैवान्येन नृत्याप्सरोगणाः मम पुण्यास्तथा वागा सुप्रभो भूर्दिवाकर स्वाहा जगदम्बार्पणमस्तु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रगत्यै भद्रायै नयताः प्रणताः स्मतां साङ्गायै सायुधायै सवाहनायै सशक्तिसुपरिवारायै सर्वालङ्कारभूषितायै सर्वाभीष्टप्रदायिन्यै दशमाध्याय देवतायै महासरस्वत्यै नमः गन्धपुष्पा व्यानाय स्वाहा व्यानायेदन्नमम अपानाय स्वाहा अपानायेदन्नमम चक्षुषे स्वाहा चक्षुषेदन्नमम श्रोत्राय स्वाहा श्रोत्रायेदन्नमम मनसे स्वाहा मनसेदन्नमम वाते सरस्वत्यै स्वाहा वाते सरस्वत्यायेदन्नमम पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञेः घृतेन त्वं तनवो वर्धयस्व सत्यास्यं दयदमानस्य कामा स्वाहा वसुनीथायाग्नय इदन्नमम गृहीतोऽग्रमः चक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते दशमाध्याय देवतायै महासरस्वत्यै नमः कर्पूरनीराजनं दर्शयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि பதினோராவது அத்தியாயம் நாராயணி நமோஸ்துதே அப்படின்னு அம்பாளை தேவதைகள்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறா. அம்பாள் மகிஷாசுரனை வதம் பண்ணி சண்டமுண்டர்களை வதம் பண்ணி சும்பனு சும்பாலையும் வதம் பண்ணிவிட்டா. இப்படி அம்பாள் பிரசன்னமாக இருக்கா. அப்படி இருக்கக்கூடிய அம்பாளை வதம் பண்ணி இருக்கக்கூடிய அம்பாளை தேவதைகள்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடியதான அத்தியாயம். முன்னாடி மாதிரி எல்லாரும் கிழக்கமாகவும் வடக்கமாகவும் மேற்கமாகவும் நின்றுண்டு நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டியது. நாராயணி நமோஸ்துதே அப்படின்னு சொல்கிறச்ச நமஸ்காரம் பண்ணணும். முன்னாடி மாதிரி சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணலாம், இல்லை பாவனையாக நமஸ்காரம் பண்ணலாம். இங்கே சுவாஸ்